ठीक है guys, let's start with the session. So Git, GitHub and Hacktoberfest 2020. This is a session and about the speaker. You also know. I'm Ghulam Izdani. I'm SD at Upgrad, one of your uh, like college mate, and I'm your senior in fourth year, and also a founder of Deftrons community. Deftrons का बाद में बताऊंगा what is the Deftrons, and also a Hack Club lead, right? So let's start with the session. What is GitHub? What is Git first of all? So let's see. Git is a version control system. Version control system means to see the versions of the code, right? The version, the first version, if it published. If you know about the apps or the mobile apps, right? They are in versions, right? For the first version and second version, and then comes the third version and fourth version, right? So Git is the same thing, but it totally controls the code versioning. Like the first in the first version, what was the code of the particular project, right? So this is the thing, and it is designed to make it easier to have multiple versions of a code base. Code base means the code of a project, right? Whether it is any mobile app code, or whether it is website code or something else, right? So that is Git. Sometimes across multiple developers or teams, like as I already told you about induction session about Git, that it is version control system, and like multiple developers from multiple places uh, can collaborate to one particular code base. Uh, one particular code base, and let's say if a person is from Noida and another person from some other place, some other cities, let's suppose Mumbai, right? So uh, so they won't be able to like uh, come together in same room and totally change with their perspective, right? So what this Git do is it totally simplify that process. It like hold a code base at particular place, and other person can also add up the things that he wants to add, right? So that is the thing. And also it allows you to see the changes you make to your code and easily revert them, right? So let's say if I in the first version there is something and it is totally hosted in somewhere, right? And people are using it. What if I make some changes and it was not a good change? There was some error in the code and there was some bug, right? How do I revert that? I'm not going to do the control Z or other things, right? मैं कोड में जाके मैं फिर से कंट्रोल जेड नहीं करूंगा, एंड आफ्टर दैट फिर से मैं होस्ट नहीं करूंगा उसके, राइट? सो व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट बटन इन गिट विद किसी की माइक खुला हुआ है, फिराज, जस्ट सी दैट, ठीक है? सो I can easily revert them, right? I will just have a button. What if like I just have a button to go to the previous version जो भी मैंने बनाया हुआ है, like the first version मैंने बताया जो कि hosted है, and I don't want to be like the bugs go to the version which is online and people are using that, right? So I will just click on the revert button. This is simple, like this is what Git is. This is totally simple. So now so many people say like, भाई Git और GitHub में क्या difference है? Difference बहुत ज़्यादा है. Git uh, and GitHub was Git was prior I guess was let me remember. It was invented or discovered or something like that, you can say, by Linus Torvald in 1980, I guess, right?
and GitHub came in 2004 and 5, right? So it is totally different. You can see the total gap between these two invention and these two platform invention, right? So what does GitHub do? GitHub is kind of a like platform that will be we will also be covering in the next slides, right? GitHub is a platform that provide GUI. GUI means like graphical user interface, where people can see the GitHub repositories or code virtually, right? uh, that will be covered, don't worry, that will be covered. So Git is not GitHub, totally not GitHub. So you can see the meme, stop interfering in my with my class, where I tell people's Git is just Microsoft GitHub, like they are totally different, right? I've seen so many instructor say that Git is totally same as GitHub, so don't fall for that. They are totally different. So, okay, then what is GitHub? GitHub.com is website that hosts Git repositories on remote servers. So, Git repositories means repository in the sense means a place to host your code, right? Like you have a code of a project, right? So repository is a place where the code are hosted, and there are like if you know about hosting something, so there comes a server help us to store some particular data or some particular things you want, right? So so in the remote server we host those code via Git. So GitHub is that, github.com is that. So github.com has a remote server in which we can host the Git repositories, as simple as that, right? Hosting repositories on GitHub facilitates the sharing of code base among teams by providing GUI. As I already told you, like it provide our like ourselves a GUI, graphical user interface that we can use, like totally to create fork, clone repos, like clone repos to our local machines. So fork and cloning and all the things will be covered in the next further slides. So I will be telling you that as well. Don't worry for that. Uh, so by pushing your repositories means the code you have, right? The By pushing your repositories to GitHub, you will pretty much automatically create your own developer profile as well, right? So if you see my, like, let me show you the developer profile that I have. uh Let me know if the screen is visible to you, the other screen which I'm sharing. uh so yeah, so if I go to github.com and Gulam Nizami, uh yeah, let me know if it is visible. It's visible. Okay, so if you go to this GitHub profile, you can see my whole portfolio, what work I have done, like the things, how many followers do I have, how many code do I have written. These are the GitHub contributions, right? These are some commits that I have made. These are some, like here are some listed of the what do you say, pull request and the organization that I have joined recently. So all of the things are totally here. Your code, like the project I have, the community verse project, git pick project, or the other projects that I have that are totally written by me, it is totally over here. And people can come in, it can be they can be a uh, hr from some other companies, right? That can see your profile here, how many works he has done, how many projects this person has done, what are the tech stack he follows, right? So it totally give you a profile, like portfolio. It builds up a portfolio via creating your projects or pushing your projects to uh, some places, right? So this is the whole portfolio, right? uh yeah, that's it for the portfolio. Let me share my screen again with
uh, PPT. Yeah. So yeah. So this is it. This is what GitHub is. And yeah, confirm that you have Git in your uh, machine, local machines. So you just have to run the terminal. What you have to do, let me again share my screen and tell you how to see if you have Git in your machine itself. So most of you won't be having Git. So just do what I'm doing, and yeah, and we will figure it out how to install Git and Git command line and all. So you just have to write Git in your CMD. If you like, just follow up with me. Just write Git in your CMD and check if you have if these things are coming in your CMD. If not, we will be installing it from Git website. So we will be doing that as well. So right now I have installed Git in my local machines. So I'm getting all these things. But if you haven't, so you will be getting some other errors and all, right? So let me go to the website, which of the Git website. Uh, so yeah, you will be having the command not recognized error. You probably haven't installed Git yet, right? So you have to install it first. Let's see how to do it. So you just have to go to the Git website, Git uh, CLI. Yeah, not that. Yeah, this one. So whether like just download it, whether it is like if you are using Mac OS, you can download this version. If you're using Windows, you can download this version. If you are using Linux, you can download Linux and Unix version. So yeah, I have Windows. I will just click on this. So it will be downloading in my machine. So yeah, uh, if you have 32-bit 32-bit Windows version, you have to download 32-bit. If you have 64-bit, you have to download 64-bit, right? So yeah, you have to download these. You don't have to go to below. You just have to download these. So 64-bit Git for Windows setup. You just have to download this. Uh, yeah, it will be downloaded, and then the same thing like with other application you have done. Just the same thing. You have to just install it next, and yeah, it will be installed. And yeah, we'll be doing some stuff in Git 2 here after installing, right? So give me a cheer if you have installed. Am I audible now? Hello. Yes, yes. People are saying I'm not audible to him. Your voice is not audible. Okay, so let me know in the chats if I'm audible, guys. You're audible, Gulam bhai. Okay. So yeah, it will be downloaded. You just have to do next. I will show you that as well. That's what. Yeah, it's just downloading. Yeah. So you just have to click on install, and it will be installing it. So I have already installed it. So I won't be doing that as of now. Uh, yeah. So you have to do that.
And after that, you just have to again check if Git is properly installed in uh, machines, local machines, right? You have to check that. uh, yeah, you have to check by writing Git. uh, and yeah, I guess I installed Git. While installing the Git, downloaded. So what will I do? I will install it again, no worries. uh, I will follow up with you guys. uh, uh, I don't have to download it again. So yeah, so these are the steps. Let get decide. So you have to just like follow all the things for like you have to like follow the initial Git setups, right? Recommended things which this Git whole version recommends. Yeah, you have to do this. All other things, use Minify default as a default. Just select default versions, and yeah, install all the things. And guys, try to follow up with me. If you have any questions in between, you just have to open up your mics and just let me know. Okay, yeah, I have installed Git now. Uh, you would be seeing this interface if you have installed it. Uh, or if you are not getting this interface, you just have to go to the search bar and just write Git bash, and it would be there. So just have to open it. So what is Git bash? Git bash is a CLI that is same as CMD, which we use in Windows. That particularly used for Git and like pushing Git repositories, Git code, and seeing histories of Git code, the versions and all the things. So yeah, so if I write Git over here, I will see those commands and all. You can see. So yeah, with version I can see the Git version with help, and it see all there are all the commands over here. We will be going through these two as well. uh, which one, people are asking which one, standalone or thumb driver? You have to download only standalone. You don't have to go to thumb driver. Thumb driver is used for some other things. Yeah, so you just have to download in standalone version. So yeah, we have installed Git. Now, uh, what you have to do, configuring it. You have to now configure it. You have downloaded the Git perfectly. You have to configure it. So how do we do that? Uh, how do we configure Git? So we have some commands for that. So first of all, you have to see. Let me know if my commands and CLI is visible to you. Yeah, it would be now. So you have to just write some commands. These are the commands: git configure global user name. So what it will be doing, it will be showing you if username or your username is stored in the local machine, right? And these username and these email will be used to particularly label that this code is being written by you and this is being pushed by you, uh, pushed by you itself, right? So yeah,
you just have to put these command git config hyphen global and username. Git config hyphen global and user dot name. So yeah, I have already configured Git properly in my machine, so I have my name over here. So it is showing Gulam Yazdani. Yeah. So also, if it is not showing up in your machine, you just have to uh, write the same command, but also add up your username. So as I already as I wrote previously, uh, username and all. So after this, you have to put down some space and write your username or your name itself. So I would just write Gulam Yazdani and hit enter. So I have already Gulam Yazdani saved in my machine, local machine. So it will be like, yeah, it will be not change or like replace whatever we have, right? Now, uh, so I will just write this command in the uh, chat section if you want. Am I audible now? Hello. Yes, bye. यार किसी किसी को हाँ आवाज नहीं हाँ आ हाँ रही है। गुलाम भाई ऑडिबल 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 गुलाम भाई। वो ठीक लोग है। के नेटवर्क इशू होगा। आप आप ऑडिबल किसी को आवाज नहीं आ रही है तो वो कनेक्ट पर वाईफाई और सेलुलर पर जाएं तो वो आवाज आपकी सुन पाएंगे। ठीक कनेक्ट नहीं है, करा होगा ओके। किसी ने वॉइस। हाँ, एक बार चेक कर लो कि यू हैव कनेक्टेड विद वाईफाई, लाइक यू कनेक्टेड विद ऑडियो इटसेल्फ, तो योर इशू वुड बी सॉल्व। तो कंटिन्यू करते हैं। मैं ये कमांड डाल देता हूँ चैट बॉक्स पे, एक बार चेक कर लो एंड कॉन्फ़िगर इट इन योर मशीन, लोकल मशीन। Global and user dot ठीक है। और ये तो ये चेक करने के लिए यूज़र नेम क्या है। अगर तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है तो इसके आगे जैसे मैंने बताया, यू हैव टू राइट योर नेम्स। या यू हैव टू राइट योर नेम्स, जैसे कि मैंने अभी करा, मैंने अपना नाम रखा, नाम लिख दिया एंड या हियर इट इज, इट विल बी सेव इन योर मशीन्स। यार ये मत करो, इरेजर। या ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी मैंने ये अपना नाम कॉन्फ़िगर कर लिया है। नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर योर ईमेल इटसेल्फ। सो हाउ डू वी डू दैट? सेम एज व्हाट वी डिड फॉर नेम। हमें वही कमांड डालना पड़ेगा, बट इंस्टेड ऑफ नेम वी हैव टू पुट email, right? We just have to put email and whatever your email is, and uh, uh, just ये करो कि तुम्हारा ही ईमेल हो जो तुम गिटहब पे यूज कर रहे हो, नॉट अदर ईमेल, राइट? तो yeah, we have configured it. Let me check if I'm having my emails right now in the machine, local machine. uh, yeah, it is totally being configured. If I also want to add email or replace the previous one, I will just write Gulam Jistani, whatever email I have, and hit enter. It will be replaced. So this is the basic configuration of Git. You don't have to do anything else. We will be configuring. We will be also seeing that how do we install GitHub in VS Code, and also log in GitHub in the VS Code itself, so that we can push and pull the code easily, right? So yeah, अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यार, गिट तो बहुत अजीब सही है, हम गिट क्यों यूज करें? कंट्रोल कंट्रोल जेड कर करके हम लोग तो कर सकते हैं ना।
गिट क्यों यूज कर रहे हैं? तो यार कंट्रोल जेड से कर सकते हो यार. Nobody has told you to not do that. You can do that, but in the bigger projects, where like versioning is the problem, where people have to see the history of history of the code, right? What was the previous code and what code has been changed, तो git यूज करते हैं. कंट्रोल जेड से क्या होगा, तुम्हारा जो नया कोड जो तुमने लिखा हुआ है, इट विल बी रिमूव्ड एंड द प्रीवियस कोड वुड बी देयर. एंड व्हाट इफ यू वांट द न्यूअर कोड टू बी सीन, what was wrong in the new code, bugs were there, and how to solve it. What if you have to see that? So it git comes into that place. Git will be helping in that totally. Yeah. So again, one does not simply understand git. बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसमें घुसना पड़ेगा, and you have to totally write git commands and practice these things in your uh, uh, in your free time or in your local machines itself. So how do we use git and github, right? How do we go ahead and use and git and github? I will be giving the practical thing as well. Let's see what is the theoretical things. So from your project directory, run git init. अब प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्या होता है भाई? जहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हो, जिस डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट बना रहे हो. अच्छा, डायरेक्टरी क्या होती है, राइट? एंड डायरेक्टरी भी नहीं पता. सो लेट्स चेक व्हाट इज डायरेक्टरी. सो अभी ये जो पाथ है हमारा, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टरी सिर्फ. अभी हमारा जो पाथ है वो यूजर्स और GHULA है. अब मुझे इस लाइक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन दिस पाथ इटसेल्फ. सो हाउ डू वी डू दैट? या फिर किसी और पाथ में भी करना है, तो हाउ डू वी डू दैट? सो या तो किसी को अच्छा, किसी को पता है हाउ व्हाट इज पाथ एंड व्हाट इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी? एनीवन? चैट में लिख दो. नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा और इसके डिटेल में बता देता हूँ इसका, और जो भी कमांड्स होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, so that it would be easier for you to run git commands and to host projects. Okay, simple. Path is where your file is stored, right? Again, कोई और, किसी और के पास कोई ऐड अप करने वाली थिंग है? डायरेक्ट मैसेज मत करो यार, पूरा एवरीवन पे जाने दो. डायरेक्ट मैसेज करे तुम लोग. The location where you make your projects, totally agreed. Yeah. So this is path, the location or the place where you store your code, or you store your particular things, whether it is image, whether it is videos, whether it is anything, right? So yeah, so you just have to write git init in your project directory. So I will just go ahead and first of all like go ahead with my D directory. So I will let's clear this whole thing out. Let's do one thing. Yeah. So yeah, I will just go ahead with my D directory path. So here it will be open. D directory path will be opened. Now I have to create a new folder, a new file where my whole data, the whole code would be hosted, right? So I will make a directory. So make there is the command to make a new directory or to make a new folder, right? Make directory, I will be naming git uh, yeah, and also I will seeing if it is being created or not. If it is, then I will be using that. Yeah, here it is, git cd. So cd is the command to
that is used to change the directory. So I'm right now in this D directory, home D directory. Now I have to change to the Git directory. So from the D directory, which is kind of have all the folders, I will be going to the further newly created directory, which is Git. Okay. Now what we had to do is we have to run Git init in your project directory, right? So I will just write Git init initialized empty Git repository in git.git, right? So it like it has been initialized, like your Git repository has been initialized. Now what you have to do now, I can just open this up in VS Code as well. So if you have installed VS Code, you just have to write code dot. So this particular directory will be opened up in your local machines. So yeah, VS Code has been opened, and the Git folder where we will be hosting our code will be opened up, right? So let's say I'm including one file over here. So I just have to add one file. Let's say it is hacklab.js, and I'm writing some console log. Hello hacklabus. Right, I have this code, and I have like I want to push to the Git repository. So what I will do, I have a GitHub account. So first of all, if you don't have your GitHub account, you have to create that as well. So it's totally easy. You just have to follow all the instructions that GitHub provides. सर हम प्रोजेक्ट के टर्मिनल से Git यूज नहीं कर सकते वर्सेस कोड में. सर हम प्रोजेक्ट के टर्मिनल से Git यूज नहीं कर सकते. यार कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो. देयर इज नो इशू इन दैट. वर्स ये VS कोड में एक बार इलैबोरेट करोगे व्हाट यू आर आस्किंग मोहम्मद इस्माइल. टर्मिनल से तो तुम अपना कोड होस्ट कर सकते हो, या फिर जो भी पुश करना है गिट पे या गिटहब पे, तुम टर्मिनल से टोटली कर सकते हो. जो भी तुम्हारी डायरेक्टरी में तुम्हारा कोड होगा वहाँ से तुम टोटली कर सकते हो, और वही करवाएंगे अभी. Okay, so now let's create a repository. अब यहाँ पे हम लोग क्यों बना रहे हैं? We have to create it like git ut. हमें बनाना होता है यहाँ पे क्योंकि we are hosting it to our GitHub, राइट. तो कहीं तो होस्ट करने का जगह होना चाहिए, तो वो गिटहब यूज करें हम लोग. यू कैन यूज अनदर प्लेटफॉर्म्स. बिटबकेट है हमारा, GitLab है, और some other platform as well that provide you GUI and some servers to host your like to host your total code itself. तो we are using GitHub. तो repository बना लेते हैं. So first of all, GitHub का अकाउंट होना चाहिए, पहले ही मैंने बताया. You just have to go to github.com, create a new account. मेरा तो पहले से बना हुआ है and I am also logged in. तो you just have to create a GitHub account. Or again after that you have to create a repository. अब repository कैसे बनाए? अगेन यहाँ पे एक प्लस बटन है. अगर तुम होम पेज पे आते हो GitHub के, यहाँ पे प्लस बटन है. न्यू रेपोजिटरी पे जाओगे. अब जो सिलेक्ट योर ओनर, मैं काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस का भी ओनर हूँ.
तो it is showing me all these things. तुम्हारी में नहीं दिखेगा, तो you just have to click on your, if it is other things are visible, you just have to click on yours. अब और यहाँ पे get cute लिख देंगे, right? And yeah, I will be selecting public. I will be adding a readme file that will be helping some other people to see what the code is about, right? Now after all these things, I will be just creating a repository. Also, if you want to choose a license means how people can use this code, right? If it is open source, how uh, like if the person don't misuse your code, right? So you put all those restrictions in this license. If you want to add license, you can just click on license. I'm just using MIT license right now. Yeah, I will be creating a repository. After creation, you will be seeing some commands. Let me check if I have here. Wait, right now it's not showing up because this is not my first repository, right? So there would be some commands in yours. If you like create for the first time, there would be some commands that you can run. So yeah, now let's see if we have those command that would be helpful to us. uh, let's check if it is here. Let's do one thing, create a new repository, and also without any further readme and all, git yeah. So these are the commands that you have to run now. So git init we have done, totally previously. Now we have to, if we want to add readme, we just add dot readme dot md from our terminal itself. So I can just go do git readme, add readme dot did not match any files. Okay, so first of all, I will have to create the readme in my uh uh here in my code base that I have. So I will just write readme dot md. Okay, so now if I do this, it will be done, right? Now how do we commit? So commit means to push the code to the uh, GitHub, right? So it will pushing to this total this repository. So I will just have to copy and paste it over here, untracked file. So what you have to do, git add git commit. Now what branch is it? I will be telling you these things, these commands in further slides as well, like deep into these what do you say, commands. So I will be going to git branch, like I will be doing git branch and it is the main branch. uh yeah, git remote add origin, and yeah, here it is, git push to the main. Okay, so what has been done is all the files that was in my local, it is pushed in this uh github, right?
So what I did I just put on some git commands that GitHub provided itself. So what it provided us, first of all, it told us to do git init, so that repository get initialized. After that, it said that if you want to add git readme, you can add git readme.md from git command itself. So yeah, well, I didn't have git readme. I didn't had readme.md, so it showed me some error about readme, right? After that, I used git commit command. Git commit command. किसी का माइक चालू है, continue. Okay, so git command, git commit m first commit, ये हमने डाला. ये भी हम लोग देखेंगे आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में. और उसके बाद हमने ब्रांच चेंज करी. गिट ब्रांच के बारे में भी बात करेंगे थोड़े अगले स्लाइड्स में. और उसके बाद हमने रिमोट सेट करा. रिमोट सेट, ये दिस इज द मेन कमांड. दिस इज मेन कमांड. हाउ इट इज मेन कमांड. ये हमारा कनेक्ट करा है गिट रेपोजिटरी से, जो हमने बनाई हुई है गिटहब पे, राइट. दिस इज द कमांड विच इज द मेन कमांड, राइट. अब हमें जो हमारा जो कोड है लोकल पे, हम पुश कैसे करें गिटहब पे. सो दिस इज द कमांड फॉर दैट. और कौन से ब्रांच पे करें, दिस इज द कमांड फॉर दैट. ब्रांचिंग की भी बात करेंगे, व्हाट इज ब्रांच एंड व्हाट इज अदर स्टफ, तो वो देखेंगे अभी. लेट्स गेट टू आवर स्लाइड्स अगेन. तो हमने गो टू गिटहब एंड क्रिएट न्यू रेपोजिटरी इन द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट. हमने वो भी कर लिया, एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, रेपोजिटरी बना ली, और उसको नाम भी दे दिया एज अ गिट ट्यूट, राइट. Now follow the instructions on GitHub to connect your initialize Git repository to remote server, right. So how do we did that? Again, वो हमने ये कर लिया. यहाँ पे git add करा हमने, git commit करा है, ये सारी चीज़ें हमने उन्हीं के GitHub के कमांड्स ही फॉलो करें यहाँ पे. So you just had to do that. And अगेन, हाँ, अगर तुम्हारे पास रेपोजिटरी और योर फोल्डर डोंट हैव एनी कोड और फोल्डर डोंट हैव एनी फाइल्स इन इट, तो वो पुश नहीं होगा. तो प्लीज नोट दैट. सो आगे बढ़ते हैं. अगेन, ये दीज आर दी बेसिक गिट कमांड्स. हमने यही सारे कमांड्स रन करे हैं. गिट ऐड करा था सबसे पहले हमने, गिट कमिट करा हमने, गिट पुश करा, यही सारी चीज़ करें. ब्रांचिंग भी करी है, ब्रांचिंग का इशू नहीं है. अगेन आई विल बी टेलिंग यू द ब्रांचिंग एंड ऑल. चलो एक बार और देख लेते हैं. टू हाउ डू लाइक, अगर फिर से अगर कोई सा कोड चेंज है हमारा, लेट्स से हैकलबर्स यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ मैं. हैकलबर्स फ्रॉम hackclub.js डाल देता हूँ मैं, ठीक है. हैकक्लब डाल देता हूँ सीधा, ठीक है. अब इसको मैंने पुश करना है. अब मैंने ये कोड में चेंज कराया हुआ है. अब मैंने इसको कैसे पुश करूँ, अपने जो मैंने गिट का रेपोजिटरी बनाया हुआ है उस पर मैंने कैसे पुश करना है. अगेन इट्स सिंपल एज लाइक, जैसे हमने ये करा था, ये सारे कमांड्स डाले थे, वैसे ही करने हैं. लेट्स क्लियर दिस होल कमांड लाइन. सो फर्स्ट कमांड वाज git add. git add ने क्या करा, git add ने हमारा जो भी चेंजेस थे उसको ऐड कर दिया हमारा काइंड ऑफ क्यू में. एक क्यू होती है जिसमें हम लोग ऐड अप करते हैं, राइट, जो भी कमिट्स रहती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिट ऐड करा. ऐड डॉट मतलब सारे चेंजेस, जितने भी चेंजेस हो रखे हैं हमारे रेपोजिटरी के अंदर या फिर फोल्डर के अंदर, सारे चेंजेस. इफ आई वांट टू जस्ट ऐड
what do you say, changes in this particular file, I just have to write git add hackclub.js और क्लिक करूंगा, बस इसी के ही जो चेंजेस है वो ऐड होंगे क्यू में। तो अभी हमें क्या करना है, सारे सारे जितने भी चेंजेस है सबको ऐड करने हैं, राइट। तो वो कर दिया हमने गेट ऐड से। अब हमें क्या करना है, बताना है भाई ये जो हमने कोड डाला है या फिर जो भी चेंजेस हमने पुश करा है या फिर जो करने वाले हैं वो किस लिए है। सो आई जस्ट हैव टू राइट गिट कमिट विद अ मैसेज, भाई हैक क्लब कुछ भी राइट कर दो यार, ये जस्ट मैसेज है, कोई देखने वाला नहीं है भाई। हैक क्लब के कोड चेंज करें, राइट, दिस इज इट, कमिट हो गया। अब व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू डू गिट push, you have to push the code which you have written, so यही है, git push कर सकते हो। अगर push ना चले you can do git push origin, git push origin। अभी मेरा push चल गया है तो there is no issue in that। अगर नहीं चला तो git push origin और your branch name was main। अच्छा, ब्रांच कैसे देखते हैं और ब्रांच होता क्या है, पहले पहले ये देख लेते हैं। सो पहले देखते हैं ब्रांच कैसे देखते हैं। सो मैंने गेट ब्रांच लिखा तो यहाँ पे मेरा ब्रांच का नाम आ गया, मैं मेन ब्रांच में हूँ। अब ब्रांचिंग होती क्या है, सो फॉर दैट आई विल शेयर अ वाइट बोर्ड। सो जब पहला पहला हमारा गेट रेपोजिटरी इनिशियलाइज होता है, जब पहला गेट रेपोजिटरी इनिशियलाइज होता है तो एक ब्रांच होती है जिसमें सारे कोड्स रहते हैं। ये मेन ब्रांच है, राइट, ये मेन ब्रांच है। ब्रांच इज लाइक अ ट्री का ब्रांचेस होते हैं ना, कि एक ब्रांच से एक एक मेन से बहुत सारे फर्दर ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो जस्ट लाइक दैट इट इज हियर। सो एट द फर्स्ट जब भी तुम गिट रेपोजिटरी बनाओगे तो सबसे पहला हमारा एक ब्रांच ही रहेगा जिसको हम मास्टर ब्रांच कहते हैं। मास्टर ब्रांच, यार टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसको हम मास्टर ब्रांच कहते हैं, राइट। दिस विल बी द मास्टर ब्रांच। सो पहले से ही दे देता है हमारा जो गिट होता है, गिटहब होता है, वो पहले ही से हमें दे देता है भाई एक मास्टर ब्रांच तो रहेगा रहेगा, और इसी में ही फर्दर तुम अदर ब्रांचेस बना सकते हो, राइट। सो ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आई वुड से अनक्लियर होगा तो मैं थोड़ा सा हार्ड सा लगेगा, बट कोई नहीं, बता देंगे वो भी थोड़ा सा, तुम्हें प्रैक्टिस पे हो जाएगा। सो या नाउ आई हैव टू ड्रॉ। सो फर्दर अगर मुझे कुछ और चेंजेस है, मुझे दूसरे चेंजेस हैं और मुझे इस ब्रांच को हर्ट नहीं करना, इस ब्रांच को मीन्स इसमें जो भी जो मेन पे जो चेंजेस हैं उसको हर्ट नहीं करना, मुझे दूसरा इसका कॉपी बना के इस ब्रांच से रिलेट कर देना है, तो मैं दूसरा बना दूंगा, राइट। इट कैन बी अनदर, कुछ भी नेम दे सकते हो इसको। तो मास्टर ब्रांच कह दो, और सॉरी मास्टर ब्रांच तो है ही, मेन ब्रांच कह दो, या फिर अपना नाम दे दो, एक और ब्रांच बना लो, लेट्स से एक और ब्रांच है और इसको तुमने अपना ही नाम दे दिया है, मैंने अपना नाम दे दिया, राइट। सो दीज आर द फर्दर ब्रांचेस, राइट। दिस इज द अगेन मैं बता देता हूँ, ये मेन ब्रांच हमेशा रहता ही रहता है, कभी भी रेपोजिटरी बनाओगे तो मेन ब्रांच हमारा रहेगा रहेगा। आफ्टर दैट यू विल बी सॉरी
after that you will be creating newer branches if there are further new changes, और तुम्हें जो मेन ब्रांच पे जो भी कोड है हर्ट नहीं करना है, राइट, तुम्हें चेंजेस नहीं करना है, तो यू विल बी क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांचेस. सो अब ब्रांच देख लिया. हाँ, सो अब ब्रांच देख लिया. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? नो, स्क्रीन नहीं दिख रहा? ओके. नो ब्रो, नहीं आ रहा. अभी दिख रहा है? हाँ, ओके ओके, इट्स ओके. ओके, हाँ हाँ, ठीक है. सो अभी हम लोग ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट पता चल गया. ब्रांचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक में हमारा मास्टर ब्रांच हमारा था पहले से ही अलॉटेड रहता है और वो गिटअप देता है हमें, राइट. अगर हमें फर्दर चेंज करना है विदाउट डूइंग चेंजेस इन द मास्टर ब्रांच, वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांचेस, राइट. सो अभी वो मत देखो, तुम्हें क्या करना है, जस्ट जो तुमने रेपोजिटरी बनाई हुई है उस पर तुम कोड कैसे पुश करें वो पहले देखेंगे, राइट. तो वो तो हमने देख लिया. हमने क्या करा था अभी, हमने वी जस्ट डिड git add git commit with the मैसेज कि भाई कमिट में क्या है, जो भी कोड हम जो पुश करने वाले हैं मास्टर ब्रांच पे ही. अभी तो हमने चेंज करके मेन पे कर दिया था, मास्टर ब्रांच पे ही वो क्या है. मतलब अगर कोड मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी चेंज करा था, मैंने फ्रॉम हैक क्लब जेएच लिख दिया था, तो वो है क्या. तो मैंने जस्ट लिख दिया भाई कोड चेंज करा हुआ है, हैक क्लब जेएच मैंने डाल दिया है, ठीक है. उसके बाद क्या करा है मैंने, उसके बाद मैंने गेट पुश कर दिया. पुश मीन्स जो भी क्यू में हमने ऐड करा है, सपोज क्यू है उसमें हमने ऐड करा है उसको पुश कर दो, और उसको हमें जो भी हमारा जो रेपोजिटरी है गिटहब पे उस पे ऐड अप कर दो. तो अभी क्या हुआ होगा, ये जो हमारा कोड है वो इसमें नहीं, हाँ यहाँ पे जो है हमारा कोड इसमें एडअप हो गया होगा, ठीक है. पहले क्या था, हेलो हैक क्लबोस, अभी फ्रॉम हैक क्लब जेएच भी ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू पुश द चेंजेस टू द मेन ब्रांच, to the main branch itself or to the GitHub repository, ठीक है. अभी फिर लेट्स गो टू द स्लाइड्स अगेन. तो ये हमने देखा गिट ऐड करते हैं, गिट अगर पर्टिकुलर फाइल नेम को ऐड करना है तो गिट ऐड फिर फाइल नेम, अगर गिट ऐड सारे ऐड करने हैं तो गिट ऐड डॉट करते हैं हम लोग, और गिट कमिट अगर कमिट करना है क्यू है उसको कमिट करना है और मैसेज लिखना है तो ये करते हैं हमें, और गिट पुश करते हैं ओरिजिन जो भी ब्रांच नेम है. अच्छा, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट गिट पुश, ठीक है. अगर कुछ इशू आता है तो यू हैव टू राइट ओरिजिन ब्रांच नेम एज वेल, ठीक है. ये इशू जब आएगा जब तुम्हारा ब्रांच स्पेसिफाइड नहीं होगा, राइट, और ओरिजिन सेट नहीं होगा. ओरिजिन सेट नहीं होगा मतलब तुम्हारा रेपोजिटरी और जो लोकल मशीन में है, जो रेपोजिटरी जो होस्टेड है सर्वर पे गिटहब के सर्वर पे, वो और जो तुम्हारा लोकल पे है वो दोनों रिलेट नहीं कर रहे होंगे, तुम्हारा सेट नहीं होगा उनमें, एक टाइप ऑफ लिंक नहीं होगा, तभी तुम्हारा ये इशू आने वाला है, राइट. आगे देखते हैं. नाउ हाउ टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट. पुल रिक्वेस्ट भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पीआर क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट पुल रिक्वेस्ट पुल रिक्वेस्ट, कुछ नहीं है. और पुल रिक्वेस्ट इज द वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ डूइंग अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. ओपन सोर्स के बारे में पता ही होगा, राइट, मैंने भी बताया था, इंडक्शन में भी बताया था आप लोग को. तो ओपन सोर्स के बारे में पता होगा. तो वहाँ पे हम लोग पीआर का यूज़ करते हैं पुल रिक्वेस्ट डालने के लिए. मतलब जो भी कुछ चेंजेस है, अगर कहीं पे किसी वेबसाइट, सपोज वेबसाइट का कोड मेरा होस्टेड है रेपोजिटरी में और उसको चेंज करना है मुझे, राइट, तो उसको चेंज करके मैं अपने उसमें, राइट, अपने पहले फर्दर
अपने गिटहब पे मैं उसका कॉपी बनाऊंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, उसमें चेंजेस करूंगा, एक नया ब्रांच बनाऊंगा। नया ब्रांच जैसे सेड कि मैं मेन ब्रांच को हर्ट नहीं करूंगा, एक नया ब्रांच बनाऊंगा और उसको मैं क्या करूंगा, एक लेट्स लेट्स डू द फर्दर थिंग्स। मैं पहले बताता हूँ कैसे करते हैं, फिर फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो गिट पीआर कैसे करें, पीआर कैसे मारे, अगर यही हमारा जो प्रोजेक्ट है तो इसमें पीआर कैसे मारे। इट्स जस्ट सिंपल एज हाउ वी डिड पुश टू द मेन ब्रांच। तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले ब्रांच चेंज करोगे। ब्रांचिंग मैंने बताई। यार मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख सकते हो भाई, सेम चीज़ ही है, ठीक है। ये डी डायरेक्टरी में है और गिट है, डायरेक्टरी सेम है। टर्मिनल है, ये सीएमडी है जो कि हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो तुम यहाँ पे भी वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हो टर्मिनल, दैट इज़ नॉट द इशू, राइट। अभी हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं तो यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्लियर करते हैं इसको यार। अभी जो भी सारा जा रहा था ना वो मेन में जा रहा था, ठीक है, मेन में जा रहा था। मेन या मेन जो ब्रांच है वो एक फर्दर न्यू ब्रांच थी जो मास्टर से कट के आ रही थी, राइट। अब हम एक और नया ब्रांच बनाने वाले हैं, उसका नाम कुछ कुछ भी दे देते हैं। सपोज गेट चेकआउट बी। बी यू हैव टू ऐड क्योंकि यू आर क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांच। चेकआउट मतलब चेकआउट मतलब होता है कि उस ब्रांच में जाना है। तो अगर मुझे मास्टर ब्रांच में जाना है तो मैं गेट चेकआउट मास्टर कर दूंगा। डिड नॉट, अच्छा मास्टर ब्रांच नहीं है, अच्छा। सो व्हाट द इशू हियर इज, जो मेन ब्रांच मैंने बताई थी वो मास्टर भी हो सकती है, मेन भी हो सकती है, राइट। सो राइट नाउ व्हाट इज डन, पहले मास्टर था, वो रीनेम होके मेन हो गया, राइट। सो मेन ही ब्रांच है जो कि फर्दर मैंने बताया जो पहले से स्पेसिफाई हो जाता है, पहले से स्पेसिफाई करके देता है जो हमारा गिटहब वही है, जैसे कि मैंने ये बताया था, राइट। तो ये हमारा जो मास्टर है, मास्टर नहीं मेन ही है ये, राइट। ये मेन ही है हमारा, फर्दर कोई से ब्रांच नहीं जा रहे हैं इसके अंदर, राइट। दिस इज द मेन। सो जो मेन ब्रांच होती है ना वो किसी भी नाम से होती है, किसी भी नाम से कर सकते हैं हम लोग उसको, हम लोग इस मेन को मैं चेंज करके आई कैन डू, और इसका नाम मैं चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ। इसका नाम मैं तौकीर कर सकता हूँ, इसका नाम मैं हुज़ैफ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, दैट इज अप टू मी, राइट। सो या अगेन फिर आते हैं इस पे, यार बैकग्राउंड क्यों रेड आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये गेट चेकआउट मास्टर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मास्टर करके कोई ब्रांच ही मौजूद नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, एक नया ब्रांच बनाने के लिए गेट चेकआउट बी ऐड कर देते हैं। ये क्या कर रहा है, हमारा एक नया ब्रांच बना रहा है, ठीक है। तो गेट चेकआउट बी, और लेट सपोज मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ अपना नाम, ठीक है, GHULM। अब क्या हो गया, एक नया ब्रांच भी और उस ब्रांच पे हम लोग चले भी गए, राइट। अब मैं चेक करता हूँ यार कुछ चेंज हुआ है क्या, पहले जो था हमारा कोड उससे कोई चेंज है। तो ये बता रहे हैं नथिंग टू कमिट, कोई भी चेंजेस नहीं थी, तुमने कोई चेंजेस ही नहीं करे हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज समथिंग, राइट। सो अगेन कुछ कंसोल लॉग लिख लेते हैं, ठीक है। एक और मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने इसको सेव भी कर दिया। अब अगेन अगर मुझे चेक करना है यार कुछ चेंज हुआ है क्या कोड में, तो अगेन git status
अब ये बता देगा यार Bro, your कुछ screen तो is चेंज not हुआ है। being updated. सॉरी। Your screen is not being updated. You're not able to see your command line. अच्छा 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 ओके। यार बता देना था पहले। जैसे अभी हुआ चाहिए देख लेना। ठीक है अभी दिख रहा है। हाँ अब आ गया अब आ गया। ठीक है तो अगेन मैं क्लियर करता हूँ। कहाँ तक क्लियर था तुम लोगों ने ये बताओ। गिट चेकआउट बी बताया था मैंने। ये देखा था तुमने, नहीं देखा होगा, चलो अगेन क्लियर करता हूँ इसको, शुरू से बताते हैं। गिट चेकआउट हम लोग मास्टर कर रहे थे, गिट चेकआउट मास्टर कर रहे थे। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मास्टर ब्रांच हमारा मौजूद ही नहीं है, वहाँ पे है ही नहीं, राइट। तो यार मास्टर ब्रांच या फिर मास्टर नाम का ब्रांच बनाने के लिए क्या करेंगे, या फिर कोई और नाम का ब्रांच बनाने के लिए क्या करेंगे? यू जस्ट हैव टू डू गिट चेकआउट बी एंड नेम इट एज यू वांट। मैं यहाँ पे रहा हूँ, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं रहेगा, जस्ट ऐसे ही रहे, ठीक है। यू जस्ट हैव टू राइट गिट चेकआउट बी गुलाम, राइट। मैं एक कोड भी तुम्हें दे देता हूँ, सॉरी एक कमांड्स भी दे देता हूँ तुम्हें। ओके, ब्रांच नेम गुलाम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ब्रांच पहले से एग्जिस्ट रहेगी तो ये हम तुम्हारा एरर आएगा। तुम्हें क्या करना है, आप उस ये बस हटा देना, बी हटा देना। बी इज टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच और चेकआउट इज टू शिफ्ट टू दैट, राइट। तो तुम्हें क्या करना, बस चेकआउट गुलाम, ठीक है। अभी बता रहा है भाई तुम तो यार पहले से गुलाम ब्रांच में हो, क्या क्या चेंज कर रहे हो? सो तो पहले ब्रांच चेंज करने से पहले ब्रांचेस भी देख लिया करो। सो गिट ब्रांच है उसका, ठीक है। सो यू हैव टू राइट गिट ब्रांच, तो ब्रांच दिख जाएगी तुम्हें कौन से ब्रांच पे हो। तो अभी मैं कौन से ब्रांच पे हूँ, गुलाम ब्रांच पे हूँ। अब मुझे देखना है यार कुछ चेंज हुआ है क्या। जो भी मैंने लाइक मेरा जो कोड बेस है उसके अंदर कोई भी कोड चेंज हुआ है। हाँ चेंज हुआ है, यहाँ पे बता रहा है कि यार ये फाइल है hackclub.js, उस कुछ तो चेंज हुआ है जो कि तुम पुश कर सकते हो, ठीक है। तो मैं देख लूँगा यार यहाँ पे चेंजेस हैं या मैंने यहाँ पे चेंज करा था। अगर मुझे फिर से कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा, कुछ भी लिख देते हैं यार अभी कुछ, ठीक है। अगर मुझे रीडमी भी चेंज करना है, रीडमी में भी चेंज कर देता हूँ, hackclub, ठीक है। अब ये बताएगा रीडमी में भी चेंज हुआ है, गिट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे दिखाएगा भाई रीडमी में भी तुम्हारा चेंज है, तुम्हारा hackclub GH में भी चेंज है, जो यू कैन पुश टू द रेपोजिटरी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो रेपोजिटरी है हमारे पे कर रहा है तुम्हारा लोकल जो भी कोड है उससे, ठीक है। तो अब क्या करना है तुम्हें, मैंने बताया था भाई गिट ऐड कमांड है। गिट ऐड कमांड क्या करता है, तुम्हारा जो क्यू है उसमें ऐड कर देता है। क्यू क्या करेगा, क्यू तुम्हारा जाएगा तुम्हारा रेपोजिटरी के अंदर जो भी होस्टेड है तुम्हारा गिटहब पे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिट ऐड, ऑल करना है तो डॉट कर दो, या फिर अगर एक एक करके करना है, जैसे readme.md पहले मैंने कर दिया ऐड, readme.md ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं गिट स्टेटस फिर से चेक करूं तो भाई वो दिखाएगा भाई रीडमी का तो ऐड हो गया है तुम्हारा, लेकिन hackclub.js में भी कुछ चेंजेस थे वो ऐड नहीं हुआ है, तो वो भी ऐड कर दो भाई। तो क्या करेंगे, जस्ट ऐड hackclub, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से
चेक करेंगे गेट स्टेटस, readme.md में चेंज हो गया, वो भी ऐड हो गया, और haglab.js में भी चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, क्यू हो गया हमारा टू गो टू द रेपोजिटरी। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, जो भी हमने अगेन मैं इसको क्लियर करता हूँ, गेट, अब जो भी हमने ऐड करा हुआ है उसको उसमें क्या क्या चेंजेस थे, ठीक है, कोड क्या था, क्या डाला है हमने। भाई हमने रीडमी में एक हेडिंग डाली है और hackclub.js में कुछ भी डाल दिया है। तो बस हम क्या करेंगे, गेट कमिट मैसेज डालेंगे यहाँ पे, चेंजेस इन रीडमी एंड hack.js। ठीक है, कमिट हो गया। फिर से स्टेटस देख लेते हैं, भाई कमिट हो गया ये तो, स्टेटस में कुछ नहीं आना चाहिए अब। ठीक है, अब भाई कमिट कमिट मतलब ये हमारा क्यू है, क्यू में जो भी हमारा ऐड हुआ है वो हमारा जाने के लिए तैयार है। वी जस्ट हैव टू नाउ पुश अ बटन, वो गेट पुश करेंगे, पुश अ बटन टू नाउ लाइक होस्टेड इन द रेपोजिटरी। तो हम क्या करेंगे, जस्ट गेट पुश। अब ये क्या होगा, ओके अभी हाँ मैंने जैसे पहले बताया था, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि अगर तुम्हारा जो ओरिजिन है सेट नहीं है, जो ओरिजिन तुम्हारा ब्रांच का ओरिजिन है वो सेट नहीं है, तो तुम्हारा एक एरर आएगा, अपस्ट्रीम का या फिर ओरिजिन का एरर आएगा। ठीक है, तो उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो हाउ डू वी डू दैट, वी जस्ट हैव टू कॉपी दिस थिंग, एज सिंपल एज दैट। ये कॉपी करो एंड पेस्ट इट ओवर हियर, अपने आप ही ये ओरिजिन सेट कर देगा। ठीक है, हमारा जो भी कोड था, हमारा जो भी चेंजेस है वो पुश हो गए होंगे। लेट्स सी नाउ। हाँ अभी मैंने क्या बताया, ब्रांच बनाई थी हमने। ठीक है, तो जो भी चेंजेस अभी मैंने करे हैं वो मेन ब्रांच पे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया कि भाई एक मेन ब्रांच होती है और एक फर्दर अदर अदर ब्रांच होती है, जिसमें अगर हमें जो मेन ब्रांच पे जो कोड है उसको हर्ट नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है, तो वो हम दूसरे ब्रांच में बना के करते हैं, दूसरे ब्रांचेस में करते हैं। ओके, एक नया ब्रांच क्या होता है, ब्रांच एक नया वो हमारी एक कॉपी होती है मेन ब्रांच की ही। ठीक है, जिसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मेन ब्रांच पे चेक कर लेते हैं भाई, hackclub.js, यार ये तो चेंज हुआ ही नहीं है, जो हमारा जो कोड में है ये तो इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं, और रीडमी में भी हमने कुछ लिखा था, यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, और रीडमी भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, मेन ब्रांच में कुछ भी हर्ट नहीं हुआ है। अब हम लोग यहाँ से ब्रांच चेंज करके देखते हैं भाई गुलाम ब्रांच में क्या क्या है, क्या चेंज हुआ है। ठीक है, hackclub.js में देखता हूँ, यार hackclub.js में तो ये सारे चेंजेस हो चुके हैं। console.log, ये भी console.log, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस है फर्दर। ठीक है, अब रीडमी में भी देख लेते हैं, रीडमी में भी सेम चेंजेस जो हमारे लोकल में होंगे वो भी यहाँ पे चेंजेस दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा hackclub। ठीक है, अब पुल रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक आ गए हो। अब क्या, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है भाई गुलाम ब्रांच तुमने जो बनाई है कॉपी करके मेन ब्रांच की, उसमें कुछ चेंज है, वो तुम एक पीआर बना के, पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट बना के तुम मेन ब्रांच पे डाल सकते हो वो सारी चेंजें। ठीक है, तो मैं कंपेयर करूंगा और पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा भाई। अब जो जो भी चेंजेस हमारे गुलाम ब्रांच पे है, ठीक है, उस मेन ब्रांच पे लाने के लिए मैं प्रपोज करूंगा भाई, जो भी इस प्रोजेक्ट का मेंटेनर, सपोज अभी तो मैं ही हूँ इस प्रोजेक्ट का मेंटेनर, और जो भी करता धरता सब कुछ मैं ही हूँ।
तो क्या करूँगा मैं, क्या मेन ब्रांच पे करना है तो मेन ब्रांच पे करूँगा, कंपेयर करा मैंने गुलाम ब्रांच पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, बस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा चेकिंग एबिलिटी टू मर्ज। सो अभी तो ये कुछ नहीं आया। कभी होता है कि यार मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं यार, कि भाई योर ब्रांच और योर कमिट्स आर नॉट एबल टू मर्ज बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट, तो वो भी तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है, राइट। सो अभी क्या है, एक पीआर बना ली मैंने, इजीली एक पीआर बना ली। पीआर कैसे बनाई, जैसे एक ब्रांच बनाया था, ब्रांच में ब्रांच वही होता है जो कॉपी होता है मेन ब्रांच का, ठीक है। एक मेन ब्रांच का मैंने कॉपी बनाया था, एक नया ब्रांच, उसमें सारे जो भी चेंजेस थे मैंने पुश करे, ठीक है। मैं गिटहब पे आया, गिट रेपोजिटरी पे आया, तो मुझे एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे ऊपर, उससे मैंने क्या करा, क्रिएट अ न्यू ब्रांच कर दिया, ठीक है। अगर वो ऑप्शन नहीं आता है तो व्हाट यू हैव टू डू, गो टू योर ब्रांच, यहाँ पे लिस्टेड आउट होगा, और यू जस्ट हैव टू या अभी तो यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे कंट्रीब्यूट का ऑप्शन आता है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, और उसी ऑप्शन पे चले जाएगा जो अभी पिछली बार ही आया था हमारा यहाँ पे, ठीक है, जिससे हमने क्लिक करके क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट वगैरह 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 करा था, ठीक है। अभी तो यार इसका करता धरता मैं ही हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, तो मैं मर्ज भी कर सकता हूँ। अभी कोई और होता, किसी और प्रोजेक्ट्स में तुम अगर कंट्रीब्यूट कर रहे होते, किसी और प्रोजेक्ट में कर रहे होते, तो कोई और करता, कोई पहले तुम्हारा कोड देखता, भाई तुम्हारा कोड में क्या क्या तुमने चेंज करा हुआ है, ठीक है। भाई पहला मेन ब्रांच रीडमी में ऐसा था, तो कुछ ही नहीं था भाई, हैक क्लब इसने डाल दिया, ठीक है। तो अगर जो भी इसका मेंटेनर होगा, जो भी इसका प्रोजेक्ट का करता धरता होगा, वो क्या करेगा, ठीक है यार मुझे ये चेंजेस चाहिए, मैं मर्ज कर लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, मर्ज एंड कंफर्म मर्ज। अब जो चेंजेस थे हमारे गुलाम ब्रांच में, वो हमारा यहाँ पे शो होने लग जाएगा मेन ब्रांच पे। कौन ट्रेन के पास बैठा है यार, ठीक है, मेन ब्रांच पे हमारा शो होने लग जाएगा, ठीक है। और या रेडमी एमडी में भी देखोगे तो यहाँ पे भी तुम्हारा चेंजेस शो कर रहा है। So this is how you make a PR. This is how you make a proper pull request. So यही चीज़ें हमने करी, पहले गिट चेकआउट करा था, चेकआउट करके बी करा मैंने, एक नया ब्रांच बनाया, ठीक है। मैंने ऐड करा फर्दर मैंने फाइल नेम्स लिखे। अगर फाइल नेम्स नहीं लिखना चाहते हो तो गिट ऐड डॉट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, सारे चेंजेस हमारे ऐड हो जाएंगे, जितने भी चेंजेस हैं। फर्दर लाइक सपोज इसमें भी मैंने चेंज कर रखा है, रीडमी में भी चेंज कर रखा है मैंने, हैक क्लब में भी चेंज कर रखा है मैंने, जो फर्दर फाइल्स हैं उसमें भी चेंज कर रखा है। तो हमारा हैक लाइक गिट ऐड डॉट काम करता है वहाँ पे। अब गिट कमिट क्या होता है, भाई जो भी ऐड करा है क्यू में, ठीक है, वो हमारा कमिट हो जाए, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल रहेगा। फ्लाइट्स, कोई भी फ्लाइट्स देखा होगा किसी ने भी, एरोप्लेन वगैरह, ठीक है। पहले क्यू में जाते हैं, ठीक है, एक एक करके बंदा क्यू में होता है बंदे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमारा एयरलाइंस के जो भी मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं यार अब बैठ जाओ, तो उसको क्या समझो, बैठने को कमिट समझो, ठीक है। और पुश क्या होगा, भाई फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, उसको पुश कहते हैं, ठीक है। मैंने एक टाइप ऑफ रेफरेंस लिया है फ्लाइट का और एरोप्लेन का, ठीक है। तो वही होता है यार, फ्लाइट में जो क्यू है वो हमारा ऐड है, क्यू में ऐड करते करते जा रहे हैं, और जो कमिट है वो बंदे जो बैठ रहे हैं वो कमिट है, और जो पुश ओरिजिन है या जो पुश है वो हमारा फ्लाइट टेक ऑफ है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा है। सो कंग्रेचुलेशन, यू हैव मेड योर फर्स्ट पीआर,
अगर मेरे साथ फॉलो कर रहे हो तो तुमने बना लिया होगा, ठीक है। अगर कुछ इशू आता है पीआर बनाने में या फिर गिट वर्जनिंग में या फिर ब्रांचिंग में या फिर किसी भी चीज़ में, यू जस्ट हैव टू पिंग मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। सो अभी हैकटूबर फेस्ट क्या है वो देख लेते हैं यार। हैकटूबर फेस्ट यही चीज़ का जो चीज़ मैंने बताई है उसका एक टाइप ऑफ सेलिब्रेशन है, एक टाइप ऑफ ओपन सोर्स कोड का सेलिब्रेशन है, ओपन सोर्स का ही सेलिब्रेशन है, एक इवेंट है, लॉन्ग चलता है। मैं हैकटूबर फेस्ट की वेबसाइट पे चले जाके दिखाता हूँ तुम लोग को। सो हियर इट इज हैकटूबर फेस्ट। अबाउट में जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा व्हाट इज हैकटूबर फेस्ट ऑल अबाउट। सो हैकटूबर फेस्ट इज अ डिजिटल ओशन, एक कंपनी है वो ऑर्गेनाइज करती है दैट encourages people to contribute to the open source projects थ्रू आउट अक्टूबर। ये मंथ ही चलता है, पूरे अक्टूबर चलता है। as name to be taken in consideration, hacktober has October in itself, right? So yeah, so much of modern tech infrastructure including DigitalOcean own product. So DigitalOcean has their own open source libraries, open source projects, right? So वहाँ पे भी तुम contribute कर सकते हो। So there are further so many open source projects, right? मेरे ही काफ़ी सारे projects हैं जो open source हैं, GitHub पे जाएं तो। So uh, let me show my profile, ठीक है। सो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं कम्युनिटी वर्स, गिटपिक, ट्यूटअप, बकट्रॉन्स, पोर्टफोलियो मेटा, मार्क्स डिटेक्शन ऐप, these are some open source projects that you can contribute. सो यही इसी चीज़ का एक टाइप ऑफ सेलिब्रेशन है। और फर्दर बड़े बड़े कंपनीज का भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है। गिट इटसेल्फ इज अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, राइट? तो अगर तुम्हें गिटहब में या गिट में भी कंट्रीब्यूट करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। और नासा पता होगा तुम्हें, नासा के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी ओपन सोर्स हैं, तो वहाँ पे भी तुम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वन ऑफ द प्रोजेक्ट आई रिमेम्बर ऑफ नासा, मार्स वाला एक प्रोजेक्ट था। मार्स पे दे वर सेंडिंग अ रोवर और उसमें ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस लिए थे उन लोगों ने, और ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट प्रोजेक्ट्स, राइट? अगर कुछ भी इशू आ रहा है, बग आ रहा है उनके प्रोजेक्ट में, तो पीपल वर सॉल्विंग फ्रॉम फॉर द अदर कंट्रीज, राइट? हाउ कूल इज दैट, राइट? एक एक जो लाइक कोड है जो मार्स पे जा रहा है हमारा, राइट? वो हमारा इंडिया में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, जामे हमदर्द में बैठ के एक बंदा लिख रहा है और वो पुश कर रहा है नासा की रेपोजिटरी में, और नासा वाले लाइक, और वही कोड हमारा मार्स पे भी जा रहा है और वही कोड हमारा रोवर में यूज हो रहा है। हाउ कूल इज दैट, राइट? सो अगर ये सर्च करोगे नासा रोवर यूजिंग ओपन सोर्स कोड, नासा रोवर using open source, yeah, this is JPL open source project. So NASA JPL नाम से एक है हमारा इनका। So this whole code was used in the rover जो कि नासा का जो रोवर है उसमें, एंड दिस वाज डिप्लॉयड इन मार्स, राइट? और ये सारा कोड यूज हुआ था। इवन सही है, नासा की वेबसाइट पे भी करना है तो वेबसाइट पे भी तुम हो शायद कर सकते हो। आई गेस इट इज़ ओपन सोर्स। काफ़ी सारी अदर वेबसाइट भी हैं, लेयर 5 एक कम्युनिटी है, तो इसके वेबसाइट पे भी तुम ओपन सोर्स, ये पूरा ओपन सोर्स है, यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। क्या कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इसकी पैडिंग या फिर इसका जो भी यहाँ पे ऑपरेट लिखा है, ऑपरेट की जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ और लिखना चाहिए,
ऑपरेट की जगह फंक्शन लिखना है तुम्हें, फंक्शन क्लाउड, तो वो भी तुम लोग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज होल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, दिस इज होल ओपन सोर्स। तो हाँ, अगर तुम्हें इसके प्रोजेक्ट पे जाना है तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे तुम्हें ये लोग अपना गिटहब भी दे देते हैं, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन योर दीज गिटहब। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा इनका जो प्रोजेक्ट है, इनका जो पूरा जो रेपोजिटरी है वो दिख जाएगी। सो या यहाँ पे लेयर 5 का क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रखा है, मैंने बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर रखे हैं, बहुत सारे कर रखे हैं। सो सर्विस मैश में भी कर रखा है, बहुत बहुत सारे कंट्रीब्यूशन मेरे यहाँ पे हैं, ठीक है। सो यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट, यू कैन कंट्रीब्यूट टू माय कम्युनिटी इटसेल्फ, या फिर तुम्हें अच्छा हैक क्लब की वेबसाइट पे करना है तुम्हें कंट्रीब्यूशन। ये रहा हैक क्लब। अगर तुम्हें लग रहा है भाई यहाँ पे कुछ तो इशू आ रहा है, कुछ इशू है यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है कहीं पे भी, ठीक है, बस इसी पेज पे रह जा रहा है, तो भाई इसमें इशू है, ये सॉल्व कैसे करें। वी आर वेरी लाइक यू जस्ट हैव टू गो टू द आवर रेपोजिटरी। यहाँ पे हैक क्लब की रेपोजिटरी तुम्हें दिख जाएगी। हैक क्लब की रेपोजिटरी मैं भेज देता हूँ, हैक क्लब का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी भेज दूंगा मैं, सब सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं भेज दूंगा, तो मैं यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। यू जस्ट हैव टू गो टू द प्रोजेक्ट। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, सिंपल HTML CSS में है। क्या करोगे तुम, index.html पे जाना है भाई। वो देखोगे यार, जो जॉइनस वाला था हमारा यहाँ पे, जॉइनस वाला था वो कहाँ पे है, तो यू हैव टू फाइंड दैट। व्हाट इज हैक क्लब, व्हाट इज हैक क्लब कहाँ पे था हमारा, व्हाट इज हैक क्लब, ये रहा व्हाट इज हैक क्लब, उसके नीचे ही आएगा। सो ये रहा नीचे 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 नीचे, हैक क्लब टुडे। यार रुको, ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, ज्वाइन नाउ, ठीक है ये रहा। अच्छा हमने तो यहाँ पे डाल रखा है, फिर क्यों रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे कुछ लिंक का इशू होगा, कुछ तो इशू होगा। तो यू कैन सॉर्ट दैट आउट। तुम्हें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अगेन क्लोन दिस थिंग। क्लोन क्लोन मतलब कॉपी कर लेना अपने लोकल रेपोजिटरी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फोक करना होगा तुम्हें, क्रिएट अ फोक। मैं अपने उसमें करना, अच्छा गुलाम इज़दानी पे पहले से फोक हो रखा है। फोक मतलब कॉपी करना अपने गिटहब में, राइट। अब उस फोक को क्या करूँगा, ये देखो यहाँ पे पहले से फोक हो रखा है मेरा, ठीक है। अब ये क्या है, फोक मतलब मैंने कॉपी ले लिया है जो हैक क्लब की ऑर्गेनाइजेशन पे था, या फिर कंपनी कंपनी भी बोल सकते हो, नासा अगर देख रहे हो तो कंपनी हो गई वो, ठीक है। ठीक है, सो क्या कर रहे हो तुम लोग, देख रहे हो। एंड अगर हमें इसको अपने लोकल पे देखना है, अपने लोकल में चेंजेस करने हैं, तुम यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हो। अगर मुझे प्रोजेक्ट डॉट HTML में चेंज करना है या फिर index.html में चेंज करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे एडिट बटन है, यू कैन सी दैट एडिट बटन है। यहाँ पे क्या करोगे, रजिस्टर फॉर हैक क्लब GH, यहाँ पे आ रहा है। अगर मुझे कुछ और डालना है, सपोज रॉकेट की जगह कुछ और मुझे पुट ऑन करना है, ठीक है ये डाल दिया मैंने। यहाँ पे क्या करेंगे, मेन ब्रांच पे कमिट करना है, नहीं मेन ब्रांच पे भी कर सकते हैं, हाँ मेन ब्रांच पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ब्रांच पे भी कर सकते हैं, अगर नया ब्रांच बनाना है तो नया ब्रांच भी बना सकते हैं। तो दिस इज द सेम थिंग विच वी डिड इन आवर व्हाट यू से पावरशेल और CMD। तो यहाँ पे ये भी सेम चीज़ कर रहे हैं। अब देखोगे तो मेन ब्रांच से हट के एक नया ब्रांच बन जाएगा, और ये देखो पुल रिक्वेस्ट का भी आ गया ऑप्शन हमारे पास, ठीक है।
you can see we have these patch branches जो कि मैंने यूज़ नहीं करा अभी तक। गुलाम यज़दानी ब्रांच जो हमने अभी बनाया है, गुलाम यज़दानी ब्रांच में देखोगे तो इसमें क्या चेंजेस हुआ है वो भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पुल रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा मेन ब्रांच पे। क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, क्रिएट कर लिया मैंने पुल रिक्वेस्ट। रजिस्टर फॉर हैक क्लब JH, यहाँ पे मैंने ये जो चेंजेस करे थे वो आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे हैक क्लब की ऑर्गेनाइजेशन पे मुझे वो करना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूट का ऑप्शन है। दिस ब्रांच इज नॉट अ हेड ऑफ अपस्ट्रीम, लेट्स चेक इट आउट। ओके, ये अपडेटेड नहीं था टू द मेन ब्रांच, तो इसीलिए कुछ इशू आ रहा था। ठीक है, सो अभी फिर से करते हैं, फिर से कंट्रीब्यूट करके देखते हैं। सिंक फूक कॉन्फ्लिक्ट, दिस ब्रांच हैज कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व। डिस्कार्ड कर देते हैं जो भी कमिट करा था, कोई दिक्कत नहीं है। एक और फिर से करते हैं, एक और कमिट करते हैं, और फिर से हम अब मेन ब्रांच पे नहीं, मेन रेपोजिटरी पे करेंगे। ये तो मेरा कॉपी था, मैंने कॉपी कर रखा था गिटहब पे। अब हमें करना है जो मेन सॉरी हैक क्लब JH का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उस पे करना है मुझे। तो हाउ वी डू दैट, सो अगेन सेम थिंग वी डू। यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है, सपोज लेट्स से अबाउट की जगह अबाउट अस करना है मुझे। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने, एक नया ब्रांच बनाया, या तो ग्राम यजदानी ब्रांच तो मैंने पहले ही बना रखा था, उसी में कमिट कर देता हूँ। कमिट कर दिया मैंने, ये हो गया हमारा कमिट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वी कैन क्रिएट अ न्यू पुल रिक्वेस्ट नाउ विथ गुलाम दिस विथ गुलाम यजदानी ब्रांच। तो यहाँ पे जस्ट कंट्रीब्यूट का ऑप्शन आएगा, ओपन पुल रिक्वेस्ट। अब हमें चेक करना है यार, ये जो हमारा जो बेस रेपोजिटरी है वो सिलेक्टेड कौन सा है, वो हैक क्लब का है या फिर गुलाम यजदानी वाला है, जो कि कॉपीड है, जो क्लोन फोक्ड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी मेन पे मानना है यार, हैक क्लब के ही इस पे ही मानना है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा यार, मैंने ये सिलेक्ट कर लेना है, और मेन ब्रांच यहाँ पे बेस मैंने मेन सेलेक्ट करा हुआ है। जिस ब्रांच पे मुझे पुल रिक्वेस्ट माना है। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है भाई, जो हैक क्लब JH का जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो रेपोजिटरी है उसमें भी कई सारे ब्रांचेस है, उसमें से कौन से ब्रांचेस पे तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है, उसमें कौन से ब्रांचेस पे तुम्हें कोड डालना है। ठीक है, तो ये बता दिया इसने। अब हेड रेपोजिटरी कौन सी है मेरी, जहाँ से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो ये है, गुलाम यजदानी हैक क्लब डॉट JH। रेपोजिटरी मतलब ये मेरा क्लोन्ड है या फिर फोक्ड रेपोजिटरी है। ठीक है, अब कंपेयर कौन सा करना है, गुलाम यजदानी, ये जिसमें मैंने चेंजेस कर रखे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, जस्ट क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। ये ऑटोमेटिकली पहले से ही हो रखा होगा, उसमें कोई यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब देखते हैं यार कोड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कोड में यार जो हमने करा था अबाउट से अबाउट अस वो तो हो गया। चलो, अब हमने ये तो पुल रिक्वेस्ट बना लिया, पुल रिक्वेस्ट बनी कहाँ पे है ये भी देख लेते हैं। पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे बनी है हैक क्लब की, जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियल जो गिटहब की रेपोजिटरी है उस पे बनी है। अब यहाँ पे देख, यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट
सॉरी, यहाँ पे मर्ज का मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? एनीवन कैन आंसर। चैट में लिख सकते हो। यहाँ पे मर्ज को मर्ज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मर्ज का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस हैक क्लब GH। ठीक है, आई एम नॉट ओनर फॉर एंड आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू मर्ज द particular like PRs. I'm not able to merge things, right? क्यों? क्योंकि यार हैक क्लब की उससे मैंने बना रखा था। सो हैक क्लब का मेन जो है अकाउंट वो ही मर्ज कर सकता है, और कोई मर्ज नहीं कर सकता। नॉर मी, नॉर हुजैफ, नॉर अब्दुल्ला, कोई भी नहीं कर सकता। जस्ट हैक क्लब का जो मेन है वही रिव्यू कर सकता है कोड, और वही मर्ज करता है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया हाउ टू मेक अ पुल रिक्वेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन राइट yes इन चैट्स। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मेक अ पुल रिक्वेस्ट। अभी अगेन वी हैव लाइक वी कैन गो टू द स्लाइड्स। शायद ये एंड है। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज इट। कुछ इशू आ रहा है, कुछ भी पूछ सकते हो अभी। any questions you have, you can just open up your microphones and ask. अगर फॉलो करा होगा, फॉलो अप करा होगा मेरे साथ, तो यार आने चाहिए, इशू तो आने चाहिए, थोड़े बहुत तो आने चाहिए। ठीक है, नजीब said yes, इकरा said yes, संदीप said yes। ठीक है, ठीक है, और किसी को समझ आया? ठीक है, सो यही था यार। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन एनी क्वेरीज यू हैव। मेरा ट्विटर हैंडल है आई एम याज रिजा। आई एम ऑल्सो ऑन लाइक गिटअप पे, तो मैं ही हुई। ठीक है, गुलाम जिस्तानी सर्च कर सकते हो गिटअप पे। ऑन लिंक्डइन यू कैन सर्च मी एज गुलाम जिस्तानी। ऑन इंस्टाग्राम आई एम याज रिजा, राइट? So these are my Twitter these are my social handles. So yeah, that's it. अगर कोई क्वेश्चंस हैं पूछ सकते हो यार अभी। पूछ लो यार, क्वेश्चन पूछ लो जो भी है। यार इतना वो मतलब यार ऑकवर्ड सा लग रहा है थोड़ा, सा बताओ, क्वेश्चन पूछो यार। हाँ नजीब, कुछ क्वेश्चन है? हाँ मेरे पास है क्वेश्चन है। हाँ पूछो। हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं अगर कंट्रीब्यूट करता हूँ कहते हैं उस पर हैक क्लब पे, तो फिर तब लोग मतलब उसको कंसिडर मतलब लिया जाएगा सिंसियरली, मतलब उस चीज को लिया जाएगा। हाँ, लेट मी मेंशन दैट एज वेल। अगर यू वांट स्टिकर, यू वांट लाइक हैक क्लब की टी शर्ट्स, राइट? हैक क्लब की टी शर्ट, सॉरी सॉरी, हैकटूबर फेस्ट की टी शर्ट, यू कैन कंट्रीब्यूट टू हैक क्लब GH। जो हैक क्लब GH की जो ऑफिशियल वेबसाइट की रेपोजिटरी मैंने दिखाई थी, यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट एज वेल। ठीक है, तो वहाँ पे 4 पुल रिक्वेस्ट मारो तुम। वहाँ पे जो भी चेंजेस हैं, सपोज तुम्हें बटन में जो भी रिडायरेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, तो लिंक चेंज करके तुम पुल रिक्वेस्ट मार सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया।
ठीक है, अगर कुछ इशू अलग दिख रहा है तुम्हें तो वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज इट। सो हाँ नजीब, देन हैकटूबर फेस्ट का मार्क है उस पर। हैकटूबर फेस्ट अगर तुम उस पर कंट्रीब्यूट करते हो, पीआर मारते हो, तो दैट विल गो स्ट्रेट टू योर हैकटूबर फेस्ट लाइक पीआरस, राइट। ऑल्सो हैकटूबर फेस्ट में यार तुम लोग को रजिस्टर भी करना होता है। रजिस्टर तो कब ये, वो तो बेसिक चीज़ है, तुम लोग को पता ही होगी, रजिस्टर करना होता है और वहाँ पे तुम्हारा गिटहब से ही रजिस्टर होगा, ठीक है। दैट टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नजीब? जी गुलाम भाई, हेलो, एम आई हाँ हाँ ऑडिबल? जी जी। हाँ हाँ बोलो। गुलाम भाई, मैं चाह रहा था अगर आप अपनी इंटर्नशिप जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें कि आपने कैसे वो ग्रैब करी अपॉर्चुनिटी अपग्रेड वाली। हाउ डिड यू गॉट नोटिफाइड अबाउट इट, क्या प्रोसेस रहा? यार अब ग्रैड की जर्नी तो यार मेरी वही थी। एक रिक्रूटर मुझे बोलता है यार, यू हैव अ गुड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, you have been doing some good work, let me schedule some interview call uh, with a HR and all। तो वहाँ पे HR से पहले बात हुई, फिर उसके बाद मेरी क्या कहते हैं, व्हाट यू से, तो उन्होंने खुद रीच आउट करा था आपको? रीच आउट करा था मुझे अरे उन्होंने खुद, ठीक है। सो मेरी HR से बात हुई, फिर मेरी जो टीम मेंबर्स थे वहाँ पे अपग्रेड में काम कर रहे थे, जो मेरे साथ काम करने वाले थे फ्यूचर में, उनसे बात हुई। मेरी मैनेजर से बात हुई, देन दे लाइक माय वर्क एंड दे लाइक माय स्किल्स एंड ऑल। तो या फिर उसके बाद दे हैड लाइक आई हैड टू गो इन सम व्हाट डू से कोडिंग टेस्ट, कोडिंग राउंड। पहला तो कोडिंग राउंड था हमारा, जी जी। फिर उसके बाद वही कोडिंग में क्वेश्चंस किस थे टाइप के हमारे, क्वेश्चन पूछे थे? वही डीएसए? डीएसए, हाँ डीएसए के कुछ क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम ओके। सॉल्विंग पे थे। लीड कोड अगर सॉल्व करते होगे तुम, तो लीड जी कोड के जी। ही सारे क्वेश्चन थे। मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे थे सारे लीड कोड पे मैंने पहले ही सॉल्व कर रखे थे। सो आई डिडंट हैड एनी लाइक, क्या वो सीपी की तरफ ज्यादा वो थे, क्या नहीं क्या नहीं कहते नहीं, हैं, ज़्यादा नहीं झुके थे, हुए? ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं थे अच्छा अच्छा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे। ओके दे वर ओके। जस्ट बेसिक या फिर मीडियम बोल सकते हो, मीडियम लेवल मीडियम लेवल। लीड कोड क्वेश्चंस। ओके। और लीड कोड का सीधा क्वेश्चन दे दिया था मुझे, जो मैंने कर रखा था, ऐसा बोल सकते हो। या फिर कोडिंग इंटरव्यू के बाद, कोडिंग टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू हुआ? इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा टीम मेंबर के साथ वहाँ के। दे अच्छा। आस्क्ड मी अबाउट सम terminologies in JavaScript, React and further things, Tailwind CSS, Material UI, so many other things। तो उसमें फर्दर थिंग मुझे पूछी, और उसके बाद मेरा हुआ मैनेजरियल राउंड, मैनेजर के साथ मेरा बातचीत हुई। वही सब यार, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखे हैं, क्या क्या टेक स्टैक यूज़ कर रखा था। इन फ्यूचर उन्होंने पूछा कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर व्हाट डू से टेक्नोलॉजी पे काम करवाना है तो हाउ विल यू मैनेज दैट। तो आई टोटली गिव दोज आंसर्स, राइट। फिर उसके बाद मेरा पूछा गया कि यार, HR से था मेरा इंटरव्यू लास्ट राउंड, तो HR से पूछा कि कितना लोगे, तो मैंने बता दिया भाई इतना, and he accepted that, and yeah। ग्रेट ग्रेट भाई। फिर अब पीपीओ मिला है आपको, लाइक पी यू मेंशन? पीपीओ मिल गया यार, पीपीओ मिल अरे गया। अरे। ग्रेट। उन्होंने अभी तो वर्बली बोल दिया HR ने, अभी HR के साथ मेरी नेक्स्ट वीक मीट है। मैं बताऊंगा यार, मेरे को तो पहले से इतने मिल रहे हैं, मुझे इतने दे दो, तो देन आई विल बी इन योर कंपनी। तो इफ़ यू डोंट नो, आई हैव बीन लाइक आई हैव गॉट सम अपॉर्चुनिटीज इन सम अदर कंपनीज एज वेल। पोजिस्ट है एक, और एक और स्पीचिफाई नाम से एक कंपनी है। सो आई हैव बीन गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम देयर। सो मैं उसको कंपेयर करके मैं अपना थोड़ा सा अब बढ़वाने ओके। वाला हूँ सीट, पीपीओ वगैरह। वर्बली उन्होंने बोल दिया कि यू विल बी गेटिंग पीपीओ एंड दिस विल बी द अमाउंट। ग्रेट ग्रेट।
तो ये नेगोशिएशन करना है अभी नेगोशिएशन करना है यार। ये थैंक यू गुलाम भाई फॉर द अमेजिंग आंसर। ठीक है यार, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं वगैरह वगैरह तो पूछ सकते हो यार। हैकटूबर फेस्ट में यार तुम लोग कंट्रीब्यूट करो, मेरे रेपोजिटरी पे कर सकते हो तुम लोग। मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पे गिटहब का जो भी रेपोजिटरीज हैं वगैरह वगैरह। फिराज यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। फिराज है यहाँ पे? नहीं है, मैं ये स्टॉप कर देता हूँ।